کیا ہوا، تم نے کھانا نہیں کھانا؟ فضا کھانا رکھ کر جانے لگی تو بلال نے پوچھا۔ نہیں، میں نے اور تانیہ نے کھانا کھا لیا ہے، فضا بولتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے بلال۔ کھانے سے فارغ ہو کر بلال روم میں آیا تو فضا نے بلال سے کہا، زہر نصیب، تو آپ کو خیال آ ہی گیا کہ شوہر کو بھی منہ لگا لیا جائے؟ پورے دن کے بعد ابھی اس کا منہ لچا ہوا تھا، اس لیے بلال نے چہک کر کہا، پہلی بات تو یہ بلال کہ تم اپنے دماغ میں یہ بٹھا لو کہ تم کوئی منہ لگانے والی چیز نہیں ہو، اور دوسری بات یہ کہ مجھے تم سے ہمارے متعلق کوئی بات نہیں کرنی ہے، بلکہ تانیہ اور اشہر بھائی کے متعلق بات کرنی ہے۔ فضا نے بلال کو تپاتے ہوئے سیریس انداز میں بات کی، منہ تم مجھے 3 بار قبول کر کے ساری زندگی کے لیے لگا چکی ہو، پہلی بات تو یہ ہے، اور رہی دوسری بات تو میں تم سے یا کسی دوسرے سے اس متعلق کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتا، نہیں سننا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر پہلے اچھا ہونے والا موڈ اب بلال کا خراب ہو گیا تھا۔ کیوں، آخر کیوں نہیں بات کرنا چاہتے تم؟ اس موضوع پر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ فضا نے اس کے خراب موڈ کی پرواہ کیے بغیر اپنی بات جاری رکھی۔ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے فضا؟ تم دوسروں کے معاملوں میں الجھنے کی بجائے اپنے مسئلے حل کرو، پھر بعد میں کسی اور کا مقدمہ لڑو۔ بلال نے فضا کو جتاتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر جواب دیا، پہلی بات تو یہ اپنے دماغ میں بٹھا لو بلال مسعود کہ مسئلہ کا شکار میں نہیں، ہمیشہ سے تم رہے ہو۔ دوسری بات یہ کہ تانیہ میرے لیے کوئی غیر نہیں ہے، وہ میری نند بعد میں، میری بہن پہلے ہے، اور میں اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دوں گی۔ سنے تم نے، تمہارے اندر خود فیلنگز نہیں ہے، احساس سے عاری انسان ہو تم، تو دوسروں کو اپنی طرح سمجھنا چھوڑ دو۔ فضا کی تقریر ختم نہیں ہوئی تھی لیکن وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ پہلی بات تو یہ مسز بلال، تانیہ میری بہن ہے اور مجھے بہت عزیز ہے، اس کے لیے جو بھی میں سوچوں گا یا فیصلہ کروں گا اس کے بھلے کے لیے ہی ہوگا، تو تمہیں اپنی اس ننھی سی جان کو ہلکا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بے شک میں ماضی میں مسئلوں کا شکار رہا ہوں، مگر ابھی اس وقت میرا سب سے بڑا مسئلہ تمہارا گریز ہے جو تم نے بلا وجہ میں برتا ہوا ہے، بلال نے فضا کو باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ میں احساسات سے عاری انسان بالکل نہیں ہوں، مگر اپنی فیلنگز کو شادی سے پہلے شو کر کے محبت جاڑنے کا فن مجھے نہیں آتا۔ میری نظر میں ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے جو کہ اپنے وقت پر ہی اچھا لگتا ہے۔ وہ کہتے ہوئے فضا کی گردن کی طرف جھکا۔ فضا کرن کہہ کر پیچھے ہٹی۔ اب کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ بلال نے ناگواری سے پوچھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں میرے قریب آنے کی یا مجھے چھونے کی، ابھی تم پر بہت حساب نکلتے ہیں، فضا بلال سے بولتے ہوئے روم سے باہر چلی گئی۔ اشہر اپنے روم میں بیٹھا ہوا یہی سوچ رہا تھا کہ بلال سے کیسے بات کی جائے، جو غلط فہمی اس کے دل میں پیدا ہو گئی ہے اسے کیسے دور کیا جائے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا کہ موبائل کی بیل بجی۔ وہ چونکا، کال تانیہ کے نمبر سے آ رہی تھی۔ ہیلو تانیہ، کیسی ہیں آپ؟ اشہر کال ریسیو کرتے ہوئے بولا، جو صورتحال کل سے چل رہی ہے تو کیسا ہونا چاہیے تھا مجھے؟ تانیہ نے الٹا اس سے سوال کیا۔ میں سمجھ سکتا ہوں تانیہ، جو بھی ہوا غلط ہوا، اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ کل بلال اس طرح دیکھ کر بدگمان ہو جائے گا، میں کبھی بھی آپ کو وہاں لے کر نہیں جاتا۔ میں نے آپ کو کال بھی اس وجہ سے نہیں کی کہ میرے کال کرنے سے آپ کو مزید کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن آپ پلیز ٹینشن نہیں لیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں بلال کو ہینڈل کر لوں گا اور منا لوں گا اسے، مجھے یقین ہے وہ مان جائے گا۔ اشہر نے تانیہ کو حوصلہ دیتے ہوئے یقین دلایا کہ وہ سب ٹھیک کر لے گا۔ بھائی نہیں مانیں گے اشہر، میں جانتی ہوں وہ بہت ہرٹ ہوئے ہیں میری وجہ سے، میں انہیں مزید ہرٹ نہیں کرنا چاہتی، پلیز میں نے کال اسی وجہ سے کی ہے، اس قصے کو یہی ختم سمجھے، یہ ریکویسٹ ہے میری، آپ پلیز بھائی سے کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ کہہ کر تانیہ کال ڈسکنیکٹ کر چکی تھی اور اشہر موبائل ہاتھ میں لے کر بیٹھا رہ گیا۔ ذہن آفس پہنچا تو اشہر پہلے ہی موجود تھا۔ کل کی بنسبت وہ کافی سیریس لگ رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے، منہ کیوں لٹکا ہوا ہے تمہارا صبح صبح؟ ذہن نے اشہر کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، بس ایسے ہی، اشہر نے زبردستی کا مسکرا کر جواب دیا۔ اشہر، جب سے ہم تینوں میں دوستی ہوئی ہے وہ دوستی اتنی گہری ہے کہ ہم تینوں اپنی پرسنل پرابلمز بآسانی بغیر ہچکچائے ایک دوسرے سے شیئر کر لیتے ہیں۔ کیا مجھے دوبارہ اپنا سوال دہرانے کی ضرورت پڑے گی؟ ذہن نے دوبارہ اس سے سیریس ہونے کی وجہ دریافت کرنی چاہی۔ کل تانیہ کا فون آیا تھا، اس نے منع کر دیا ہے کہ ممی کو اس کے گھر نہیں بھیجوں۔ اس کی آواز اور باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کافی ڈسٹرب ہے۔ آئی تھنک بلال اس سے سخت خفا ہے، وہ مزید سے خفا نہیں کر سکتی، اس لیے سب کچھ ختم کرنے کا کہہ رہی ہے۔ اشہر نے مایوس لہجے میں کہا، بلال کا دماغ تو میں ٹھیک کر دوں گا، تم فی الحال ان دونوں بہن بھائیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اور تانیہ میڈم، وہ اتنی بڑی نہیں ہوئی ہے کہ ان کے بھائی زندہ ہے اور وہ اپنے فیصلے خود کرے۔ اگر تم نے آنٹی سے بات کر لی ہے تو 1-2 دن کے لیے کوئی بہانہ بنا کر روک دو،
ज़ैन ने कुछ सोचते हुए इशारे से कहा। थोड़ी देर बाद बिलाल भी वापस आ गया। सलाम दुआ के बाद फिर इन तीनों की कोई खास बात नहीं हुई। क्या मैं अंदर आ जाऊँ हूर? हिजर ने बेडरूम के दरवाजे पर खड़े होकर इजाज़त लेते हुए कहा। हिजर भाई आप आइए प्लीज़। वो जो के अंदर कपड़े वार्डरोब से निकाल रही थी झिझकते हुए बोली। उसे कल वाला मंजर बुलाए नहीं भूल रहा था, इसलिए नज़र मुसलसल झुकी हुई थी। कैसी तबीयत है तुम्हारी? हिजर झुकी नज़रों की वजह तो जानता था, मगर कब तक उससे बात नहीं करता था, इसलिए कुछ सोचकर उसके रूम में उसके पास आया। जी अब काफ़ी बेहतर है पहले से। वो एक ड्रेस निकाल कर आयरन स्टैंड के पास जाते हुए कहने लगी, मगर मुझे तो कोई ख़ास तबीयत ठीक नहीं लग रही है। घर में बंद रहोगी तो मज़ीद तबीयत ख़राब होगी। चलो कहीं बाहर चलते हैं, तुम्हारी तबीयत पर अच्छा असर पड़ेगा। हिजर ने अचानक बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया। बाहर नहीं, बाहर जाने को तो बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा मेरा, उसने बेसाख्ता इनकार करते हुए कहा। वो पहले भी कभी उसके साथ अकेले इस तरह नहीं गई थी, अब तो शादीशुदा थी तो कैसे जा सकती? क्यों, क्या वजह है जो तुम्हारा बाहर जाने का मूड नहीं हो रहा? मैं तुम्हारे ख्याल से आया हूँ हूर कि तुम्हें बाहर ले जाऊंगा और तुम्हारी तबीयत पर अच्छा असर पड़ेगा, मूड भी फ्रेश हो जाएगा। मगर अब तुमने एहसास करना ही छोड़ दिया है दूसरों का, एक इंसान के पीछे ख्वार होते हुए, हिजर ने बुरा मानते हुए कहा। ऐसी बात नहीं है हिजर भाई, एहसास की क्यों बात कर रहे हैं? सभी लोगों का एहसास है मुझे। हूर को समझ में नहीं आया उन्हें कैसे मना करे। अगर इतना ही एहसास है तो 10 मिनट में गाड़ी में आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। हिजर कहते हुए रूम से बाहर निकल गया और वो बेदिली से कपड़े प्रेस करने लगी। अरे वाह भाई, आज तो बड़े बड़े लोग आए हैं हमारे घर में। हिजर ने बाहर का दरवाज़ा खोला तो सामने ज़ैन को खड़े हो देखते हुए हुई से कहा, इतने बड़े लोग भी नहीं हैं कि बहनों से न मिलने आ सके, क्या हाल है? ज़ैन ने कदम बढ़ाते हुए फिजा से हाल पूछा। एकदम पेट। आप सुनाइए बेगम, कैसी है आपकी? फिजा ने ड्राइंग रूम में अंदर आते हुए ज़ैन से पूछा। वो भी ठीक है, मैके में है, आजकल में आ जाएगी। ज़ैन ने सोफे पर बैठते हुए जवाब दिया। मैं और तानिया सोच रहे थे हूर भाभी से मिलने के लिए चले, ये भी अच्छा है। अगर वो घर आ जाएंगी तो हम दोनों वहीं आकर मिल लेंगे। फिजा ने अपना प्लान बताया। क्यों नहीं, बिल्कुल ज़रूर आना। और मियाँ जी कहाँ हैं तुम्हारे? ऑफिस से तो निकल गए थे, ज़ैन ने बिलाल का पूछा। ऊपर रूम में है, मैं बुला कर आती हूँ। फिजा उठने लगी। नहीं, रहने दो उसे, आज मैं उससे मिलने नहीं आया। तानिया कहाँ है? ज़ैन ने फिजा को उठते देख कर तानिया का पूछा। वो अपने नोट्स बना रही थी। चले मैं उसको बुलाती हूँ और चाय लेकर आती हूँ। फिजा दोबारा उठने लगी। चाय रहने दो फिजा, तानिया से कहो मुझे उससे बहुत ज़रूरी बात करनी है, मगर घर पर नहीं। उससे कहो मैं वेट कर रहा हूँ और बिलाल को भी बता देना कि मैं तानिया को लेकर बाहर जा रहा हूँ। ज़ैन ने फिजा से कहा। ठीक है, मैं तानिया को बोलती हूँ और आज रात का खाना भी यही खाएंगे। भाभी का बहाना बनाकर इनकार करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, फिजा बोलते हुए रूम से निकल गई। रिदा भी हमारे साथ आ जाती तो कितना अच्छा होता। हूर को यूँ हिजर के साथ अकेले जाना मुनासिब नहीं लगा, इसलिए बोली। मैंने उसे ऑफर की थी, मगर वो उसे फ्रेंड की तरफ जाना था। हिजर ने गाड़ी सिग्नल पर रोकते हुए कहा। मगर हूर जो किसी गाड़ी को देख रही थी, उसके ताक़ुब में देखते हुए हिजर चौंका। वो गाड़ी ज़ैन की थी, जिसमें ज़ैन के साथ वही लड़की थी जो उस दिन अस्पताल में हूर के पास भी बैठी हुई थी। क्या देख रही हो? हिजर ने हूर से पूछा। वो तानिया है, शायद स्कार्फ में शाह के साथ। हूर ने तानिया को पहचानते हुए अपनी ही ख्याल में गुम होकर कहा। नाम तो मुझे नहीं मालूम है। हाँ, मगर मैंने इस लड़की को और ज़ैन को एक साथ कई दफ़ा देखा है। ये वही है जो उस दिन अस्पताल में भी वहाँ मौजूद थी। हूर ने बेयकीनी से हिजर को देखा और देखती रह गई। कई दफ़ा एक साथ। हूर का दिमाग इस बात पर अटक गया। कहाँ को गई? हिजर ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। कहीं नहीं। हाँ, ये वही है, अस्पताल वाली शाह के फ्रेंड बिलाल भाई की बहन। हूर की नज़र ज़ैन की गाड़ी पर पड़ी, जो कि अब मुखालिफ सिमत पर निकल गई थी। हम लोग यहाँ क्यों आए हैं ज़ैन भाई? तानिया ने होटल में अंदर आते हुए पूछा। क्यों, मेरे साथ आने में मसला है तुम्हें कोई? ज़ैन ने अबरोज का कर उससे पूछा। नहीं, वो बात नहीं है, मैं इसलिए नहीं कह रही। आप तो मेरे लिए बिल्कुल बिलाल भाई जैसे हैं, तानिया ने जल्दी से कहा, कहीं ज़ैन को बुरा ना लग जाए। मैं बिलाल के जैसा नहीं, बिलाल की तरह हूँ, तुम्हारा सानिया रानिया आपी का भाई। चलो बैठो। ज़ैन ने चेयर की तरफ इशारा करते हुए बैठने को कहा। थोड़ी देर खामोशी के बाद ज़ैन ने तानिया से पूछा, अशर को क्यों मना किया तुमने फ़ोन करके? ज़ैन के पूछने पर तानिया एकदम गड़बड़ा गई और नज़रें झुका गई। मेरा तुम्हें यहाँ लाने का यही मकसद था, ताकि हम इस मौजू पर आसानी से बात कर लें। देखो, तुम मेरी छोटी बहन हो, मैं कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहूँगा और न तुम्हारे साथ बुरा होने दूँगा। अशर हर लिहाज से अच्छा और सुलझा हुआ लड़का है। तुम ये बिल्कुल भी नहीं समझना कि मैं उसकी दोस्ती की खातिर तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ ताकि उसकी तारीफ़ें करके उसके नंबर बढ़ाओ। बिलाल और अशर इन दोनों से पहले मेरे लिए तुम अहमियत रखती हो। अगर अशर में मुझे कोई बुराई नज़र आती तो मैं उसके कदम बहुत पहले ही रोक देता।
जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो तुम्हें पसंद करता है, वो हर लिहाज से तुम्हारे लिए परफेक्ट है। जो बेवकूफ़ी तुमने फ़ोन पर मना करके की है, प्लीज़ आगे से मेरी रिक्वेस्ट है कि तुम कोई भी उल्टा काम नहीं करोगी, ना इनकार करोगी। ज़ैन ने तानिया को नरम लहजे में समझाते हुए कहा, आपको नहीं पता बिलाल भाई मुझसे बहुत नाराज़ है। वो मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहते हैं। मैं अपने साथ उनका रवैया बर्दाश्त नहीं कर सकती। तकलीफ़ हो रही है मुझे, तानिया ने रोते हुए कहा। उस गधे को मैं समझा लूँगा, उसकी फिक्र तुम नहीं करो। वो खुशी खुशी मान जाएगा, तुम रोना बंद करो प्लीज़। ज़ैन ने टिशू तानिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जिसे थाम कर वो आंसू साफ करने लगी। दूर से दो आंखें बेयकीनी से मंजर देख रही थी। वैसे तुम्हारा शाबी बहुत अच्छा खिलाड़ी है, रुलाने के बाद आंसू साफ करने का फन अच्छी तरह जानता है। हिजर की आवाज़ उसकी समातों से टकराई तो वो हाल की दुनिया में वापस लौटी। चले हिजर भाई घर चले, पूर ने बेदिली से हिजर से कहा। उसके कहने पर ही हिजर ने गाड़ी ज़ैन की गाड़ी की तरफ मोड़ी थी। ऐसे नहीं, हम बाहर पहले डिनर करेंगे, तुम अपना मुंह ठीक कर लो और चलो आओ गाड़ी में आके बैठो। नहीं, मुझे कोई ख़ास भूख नहीं लग रही, आप घर चले। पूर को वहाँ मज़ीद रुकने का दिल नहीं चाहा। घर चलेंगे, लेकिन डिनर करने के बाद। हिजर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। कह तो रही हूँ नहीं करना मुझे डिनर, समझ में क्यों नहीं आ रहा है आपको? पूर के लहजे में बेजारी देखकर उसने गाड़ी घर की तरफ मोड़ ली। वैसे भी आज उसने हाथ में आए हुए मौके को गंवाने की बजाय उस मौके का फ़ायदा उठाना ज़रूरी समझा। कहाँ पर है सब लोग? बिलाल ने किचन में आते हुए पिज़्ज़ा से सवाल किया। मामू जान बेड पर लेटे हुए गालिबन टीवी देख रहे हैं। सानिया अपने ससुराल में मौजूद है। रानी आपी भी अपने शौहर और बच्चों के साथ अपने घर में मसरूफ़ है। मैं तुम्हारे सामने किचन में खाना बना रही हूँ। पिज़्ज़ा ने मसरूफ़ अंदाज में मगर तफसील से एक एक बंदे का बिलाल को बताया। तुम कभी भी मेरी किसी बात का सीधे अंदाज में जवाब नहीं देना, बिलाल ने पिज़्ज़ा को घूरते हुए कहा। तो तुम भी सीधे अंदाज में जिसका पूछना चाह रहे हो डायरेक्ट उसी का पूछो। तुमने खुद ही तो कहा है कि सब कहाँ पर है, तो मैंने सबका बता दिया, पिज़्ज़ा ने मुस्कुराते हुए बिलाल से कहा। मगर ये मुस्कुराहट दिल जलाने वाली मुस्कुराहट से कम नहीं थी, जिसे देखकर एक पल बिलाल ने घूर कर पिज़्ज़ा को देखा, मगर फिर उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आने लगी, जिसे वो छुपा गया। पूरी फिल्म हो तुम, बिलाल सलाद की प्लेट से खीरा उठाकर खाते हुए बोला। बिल्कुल, वो भी 3 घंटे की एक्शन से भरपूर। पिज़्ज़ा ने हम कैसे कर उसे देखते हुए जवाब दिया। और अगर मेरा रोमांटिक फिल्म देखने का दिल चाहे तो? बिलाल ने बगौर उसके सरापे का जायज़ा लेते हुए पूछा। हाँ, रोमांटिक फिल्म, वो भी किचन में, पिज़्ज़ा ने हंसते हुए कहा। बेडरूम कोई हमारा दूसरे मुल्क में थोड़ी है जो जाने में टाइम लगे। बिलाल ने करीब आकर उसका बाजू खींचते हुए कहा। बिलाल, अभी ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है, खाना बनाने दो, मामू के पास बैठो, अकेले है। पिज़्ज़ा ने उसकी नज़रों का मफ़हूम समझते हुए संजीदगी से कहा। ओके, अभी फ्री नहीं होता, मगर रात को तो फ्री होने की इजाज़त है ना मुझे? बिलाल ने लो देती हुई निगाहों से देखकर उससे पूछा। बिलाल, प्लीज़ जाओ किचन से, पिज़्ज़ा ने दोबारा कहा। तुम्हारी तरह तुम्हारी आना भी अजीज़ है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार मैं इसका भरम रखूँ। वैसे हो तुम बहुत जालिम बीवी, बिलाल ने पिज़्ज़ा को देखते हुए कहा और एक और कीड़ा उठाकर मुँह में डाला। शायद जालिम हूँ, मगर तुमसे कम। और अगर अब तुमने दोबारा कीड़ा उठाया तो मैं तुम्हें किचन से धक्के देकर निकाल दूंगी। सेटिंग खराब नहीं करो, पिज़्ज़ा ने वांग करते हुए बिलाल को कहा। क्यों, क्या कोई मेहमान आ रहा है? बिलाल ने पूछा। हाँ, ज़ैन भाई आते शाम में वही तानिया को लेकर बाहर गए हैं, कह रहे थे ज़रूरी बात करनी है, तो मैंने उन्हें कह दिया कि रात का डिनर हमारे साथ ही करेगा। पिज़्ज़ा बिलाल को तफसील से बताने लगी। ठीक है, मैं अब्बू के पास जाकर बैठता हूँ। बिलाल किचन से बाहर निकल गया। हिजर और हूर घर पहुँचे तो खिलाफी तवक्कुफात में और आसमा एक साथ बैठी हुई इन दोनों का इंतज़ार कर रही थी। कहाँ से आ रही हो हूर? इस वक्त कोई फिक्र, कोई एहसास है तुम्हें कितनी देर हो गई है? आसमा ने हूर को घर में दाखिल होता देखकर सनाना शुरू कर दी। क्या हो गया चाची? हूर मेरे साथ गई थी, बल्कि मैं खुद उसको लेकर गया था ताकि उसकी तबीयत बहल जाए। हिजर जो कि हूर के पीछे ही आ रहा था, आसमा को देखकर बोला। कौन से ऐसे हम लगे हुए से जो घर में इसकी तबीयत बहलने का नाम ही नहीं ले रही है? बीबी, ये घर बसाने वाली लड़कियों के तौर तरीके नहीं होते। कब तक तुम्हारा यहाँ पड़ा रहने का इरादा है? और तुम हिजर, मैंने पहले भी कहा था, अपनी राहें दुरुस्त से मत पर कर लो। तुम्हें समझ में नहीं आती माँ की बात? फातिमा ने हूर को करी करी सुनाई और साथ ही बेटे को भी झाड़ा। क्या शोर मचा रखा है आप लोगों ने इस घर में? ऐसा क्या हो गया जो इतना हंगामा हो रहा है? जबर मुराद अपने बेडरूम से आवाज़ें सुनकर बाहर आए। अबू, मैं हूर को थोड़ी देर के लिए बाहर लेकर चला गया था ताकि उसकी तबीयत बहल जाए। शायद अम्मी और चाची को ये बात नागवार गुजरी है। एक नज़र उसने हूर की आंखों में आंसू देखते हुए कहा और वहाँ से चला गया। अगर वो हूर को बाहर ले गया था तो इसमें ऐसी कौन सी आफत टूट पड़ी है जो अब दोनों ने शोर मचाना शुरू कर दिया है? जबर मुराद हिजर को जाता देखकर फातिमा आसमा की तरफ रुख मोड़ते हुए बोले।
कोई अच्छी लड़कियों के लिए नहीं होते, शादीशुदा होकर भी कज़न के साथ अकेले सैर सपाटों के लिए निकल जाए, पीछे कोई बेकार ही ना हो। फातिमा ने हूर को घूरते हुए बोला, हूर अंदर जाओ बेटा आप। ज़फ़र मुराद ने हूर को देखकर बोला। वो आंसू साफ करती हुई फौरन अंदर चली गई। और अब दोनों ये बात अच्छी तरह समझ लें, हूर मुझ पर भारी नहीं है, और अगर हिजर उसे बाहर लेकर जाना चाहे या वो खुद हिजर के साथ जाना चाहे तो अब दोनों में से किसी को मसला नहीं होना चाहिए। जो भी कुछ हो रहा है मेरी आंखें खुली हुई है और सारे फैसलों का हक भी मैं रखता हूँ, लिहाजा आइंदा इस घर में इस तरह के ड्रामों से गुरेज कीजिएगा। ज़फ़र मुराद ये कहकर वहाँ से चले गए और उनके पीछे फातिमा भी। आसमा वही सोफे पर बैठकर कुछ सोचने लगी।